एक संदेश भारत की हर बेटी को। ये दुनिया काफी अतरंगी है बेटा, जरा संभल कर रहना। ये बताएंगे तुम्हें बहुत कुछ, पर सुनेंगे तुम्हारी एक भी नहीं। तुम्हारे सारे सही जवाबों पर बजेंगी जोरों से तालियां, लेकिन तुम्हारे एक आधे सवाल पर भी उठेंगी कई उंगलियां। ये दुनिया काफी अतरंगी है बेटा, जरा संभल कर रहना। यहां लाखों एक इंसान पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे, और उस इंसान के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो आंखें मूंद लेंगे। बड़ों की इज्जत करना तो ये खूब सिखाएंगे, लेकिन जब इन्हीं बड़ों से अपनी इज्जत बचानी पड़े तो सब डर के मारे हाथ खड़े कर देंगे। पर तू डरना नहीं, घबराना नहीं, अपना सच कहने से कतराना नहीं। ये अतरंगी दुनिया भले ही एक तरफ हो जाए, तुम्हारा सच साबित करने के लिए सिर्फ एक बंदा काफी है, सिर्फ एक बंदा काफी है। थैंक यू वेरी मच। फील्स ग्रेट, बट ऑल्सो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ नर्वसनेस that I have to, fasten my belt all the time. Yeah, at times it gets uncomfortable, but the love that I get from all of you, it keeps me going on and on, and also reaffirm my faith in the content, in the great intention of great storytellers. The one thing that completely inspired me to take up this work, when I heard this story from Vinodji Suparn in that meeting at the club, usually I always, wait for the script to happen in front of me, because a story can be told in many ways. It's always that very script that I always wait for. But somewhere I realized that we cannot go wrong with this story, and we'll make sure that we write a great film, because it's not only a great dramatic piece that we can write, but also somewhere, being a daughter's father, it kind of compelled me to be part of it from the beginning. I just hope, I completely believe that a cinema cannot create a moment. I believe in it. But cinema can create so much of awareness about ourselves, about the society that we live in, that we will understand as to how we should live, and for whom we should live, and what should be the intention and the meaning of our life. Banda is that film. Banda is a film which is not only tells you about the journey of a very ordinary man, a lawyer, but it also tells you about a girl, 16-year-old girl, who always stood her ground, never let her spine disappear. It's because of her that Mr. P.C. Solanki could really go on fighting this case. So this film is a salute not only to Mr. P.C. Solanki's relentless effort, but it's also a salute to that 15, 16 years old girl who has never wavered from her version, stood there with Mr. P.C. Solanki to find justice from our judiciary system. And this film is also a salute to our judiciary system, who invariably rose to the occasion. When you come on board to direct a topic that's very critical and you have to handle it well with sensitivity, did you face any challenges as such? Because here I see the star cast is incredible, all acclaimed actors you have, directed. How was the entire process like for you?
आई थिंक इट वाज अमेजिंग। और हमने काफ़ी 6-7 महीने की रिसर्च करी है इस फिल्म के दौरान, और राइटर जो है हमारा दीपक किंगरानी, उसके साथ सुपन के साथ हम लोग ने 6 महीने का एक प्रोसेस समय बिताया था, जहाँ पर हमने सिर्फ रिसर्च करी। जब वो पार्ट हो गया फिर हम स्क्रीन प्ले पे आए। तो आई थिंक चैलेंजेस होते हैं वो फिल्म प्रोसेस के दौरान ही होते हैं, और हमने साथ एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम को साथ लेके वो चैलेंजेस वी वेंट ओवर दोज चैलेंजेस। एंड आई थिंक जो शूटिंग के चैलेंजेस हैं, आई थिंक वन मैन मिस्टर मनोज बाजपेयी, जिन्होंने सारे चैलेंजेस हमारे ख़त्म कर दिए। हम सोच के आते थे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये 1 घंटे में पैक करके ख़त्म, इतना अच्छा टेक दे देते थे। ये जो लॉयर है इसको आपने बनाया कैसे है? क्योंकि इसके बहुत किस्से होंगे, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बात करता है, लोकेशन की बात भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं ट्रेलर देख रहा हूँ तो बैकग्राउंड की स्टोरी जानना चाहता हूँ। आपके मन में वो स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं। जब आप किसी बहुत ही चर्चित आदमी का, बहुत ही महान आदमी, जिसको पूरी दुनिया देखती रही है, उनके पास वीडियोस हैं, उनके फ़ोटोज़ हैं, उनके हर दिनचर्या की कोई ना कोई रिकॉर्ड है, तब उनको करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज इस बात का होता है कि हम एक्सटर्नली उनको सबसे पहले अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, वो एक अलग तरीके का चैलेंज होता है। लेकिन जब आप एक कॉमन मैन, जो अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा जिसने काम किया है, या उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, यहाँ पे मेरे जैसे कलाकार के लिए एक फ़ायदे की चीज़ होती है कि मैं अपना इंटरप्रिटेशन जो है, मैं अपना नज़रिया उस कैरेक्टर के साथ डाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के साथ उठूं, बैठूं, उनको जानूं और उनकी नकल करने की कोशिश करूं बाहरी तौर पे। अंदर में वो इंसान कैसा है, क्या इस केस को जब वो उन्होंने लिया तब उनकी मनोस्थिति कैसी थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, जब वो केस से डील कर रहे थे तब उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, और कहाँ कहाँ पे वो वल्नरेबल हो रहे थे, कहाँ कहाँ पे वो कमज़ोर भी पड़ रहे थे, और कहाँ पे उनको किस जगह से उनको ताकत मिल रही थी। इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो पूरे तरीके से इंसान लगे, ना कि वो शुरू से जब तक फिल्म ख़त्म नहीं होती है तब तक वो हीरो लगे। मुझे हीरो जैसे चलता है, बैठता उठता है, वैसा दिखाने मुझे मेरी बिल्कुल उसमें कोशिश नहीं थी। इसीलिए मैंने सुपर्ण से और विनोद जी से और अपूर्व से बोला था कि भाई ये लोग कह रहे थे मुझे कि आप मिलिए उनसे, पीसी साहब से। मैंने कहा यार मैं बताऊंगा कि मुझे कब मिलना है, पहले मुझे कैरेक्टर बना लेने दो, क्योंकि उनका जो एसेंस है, जिसके कारण वो पीसी सोलंकी हैं, उसको मैं अपने नज़रिए में डालना चाहता था, एक कैरेक्टर खड़ा करना चाहता था, मैं उनकी नकल नहीं करना चाहता था। फिर मैं उनसे मिला, 2 दिन पहले मिला शूटिंग के, उनसे बातचीत हुई और कुछ एक और चीज़ मुझे देखने को मिली, उसको मैंने ले लिया। बाकी मैंने नकल नहीं की है। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात ये है कि जब मैं अपने आप को मैं फिल्म में देख रहा था तो बहुत बार मुझे लगा कि पीसी सोलंकी साहब को देख रहा हूँ मैं। तो वो जैसे एक फिल्म की थी मैंने अलीगढ़, वो भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर थे, लेकिन रिसर्च के नाम पे हमारे पास में सिर्फ एक आधे मिनट का एक इंटरव्यू था, उनका वीडियो था, क्लिपिंग थी, बाकी हम सब ने बनाया था। लेकिन जितने लोगों ने सीरस साहब को देखा था या उनसे बातचीत की थी या उनसे दोस्ती थी, उन सब लोगों का मानना था कि जो कैरेक्टराइजेशन किया था वो बहुत ही उनके करीब था। तो मेरे ख्याल से आदमी जो है वो अपने अंदर की चीज़ों से बनता है। बाहर से अगर सिर्फ देखने जाता तो मैं सिर्फ पीसी सोलंकी साहब की बाहर की चीज़ें नकल करता, फिर मैं भटक जाता उनको बनाने में। तो एक कहानी लिखी जाती है तो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनफैक्ट, लाइक तो और काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता है बहुत सी बार, क्योंकि जैसे कि अगर बंदा जो टाइटल है, इट कुड बी लाइक बंदा बिंदास है या फिर पावर ऑफ अ कॉमन मैन, देयर मे बी लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हाट मस्ट हैव कम इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग। और जब एक टाइटल डिसाइड किया जाता है तो कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग था। और मनोज जी आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है कभी, जब स्क्रिप्ट आपके पास आती है तो कुछ टाइटल को लेकर, या जब लिखा गया था तभी ये टाइटल डिसाइड किया गया था? हर स्टेज पे जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं और उसके लिए और फिर रास्ता ढूंढते हैं।
लेकिन कहीं भी एक चीज़ मैंने देखा, और बहुत सारी फिल्में करने के बाद, ये फिल्म बंदा में भी, कभी भी किसी समय भी हम ये नहीं सोचते कि यार ये टाइटल रख देते हैं, ये फिल्म से का है, चाहे फिल्म से उसका वास्ता है चाहे नहीं है, रख देते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। हम लोग हमेशा एक दूसरे पर सवाल करते रहते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहते हैं कि जो सुझाव आते हैं वो आसानी से जल्दी पास होते नहीं हैं। जब बहुत सारे जिम्मेदार और लोग और क्रिएटिव लोग एक साथ जुड़ते हैं तो हर सुझाव का स्वागत है होता है, लेकिन उस सुझाव पे कई नज़रिए से उस पर बातचीत की जाती है। मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन का बड़ा एक सीधा साधा रूल है, जब तक मुझसे पूछा नहीं जाता मैं बोलता नहीं। तो मैं मुझसे अगर पूछा गया कि भाई स्क्रिप्ट कैसी है, तो पहले ड्राफ्ट के बाद मेरे जो सुझाव थे वो मैंने सुझाव दिए और थैंकफुली लोगों ने माना। आप यकीन नहीं करेंगे, अपूर्व और दीपक किंगरानी जो इसके राइटर हैं, इन लोगों ने 18 ड्राफ्ट किए हैं इसके। 18 ड्राफ्ट कम नहीं होते हैं। 18 ड्राफ्ट मतलब 80 पेज 100 पेज की 125 पेज की स्क्रिप्ट को 18 बार उसको तोड़ के बनाना ये आसान काम नहीं होता है। और प्लस जितने सारे एक्टर्स हैं उन सारे के सारे लोगों के साथ में कितनी बार रीडिंग, और उनको किसी के डेट होते हैं किसी के नहीं होते हैं, कुछ लोग शूटिंग में बिजी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद रीडिंग्स इतनी बार हुई। रिसर्च मटेरियल मेरे साथ साझा किया गया, मुझे कुछ एक चीज़ें गूगल्स पे या इधर उधर से रिसर्च मटेरियल उनके मिले। तो और या जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे लगातार बात करता, तो हर चीज़ जो है हर स्टेप पे कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो बहुत ज़्यादा उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अब ये सब बनने के बाद फिर आप जब एडिटिंग होती है तो आप जानते हैं कि एडिट पे अपूर्व, पहले तो अपूर्व के जो एडिटर हैं उन्होंने काटा, फिर अपूर्व गया वहाँ पे उनके साथ मिलके उसको एडिट किया, फिर सुपर्ण आए, सुपर्ण ने फिर वापस से पूरी की पूरी फिल्म को सबके साथ मिल करके। तो ईच एंड एवरी स्टेप is very well thought out, you know, it's not something that one person will come and give something and it will be 100% approved. No, it goes through a very difficult process. That's why filmmaking is a very collaborative medium. But yes, the captain of the ship of this medium is the director. उसका विजन है, वो जिस तरह से चाहता है उस तरह से वहाँ पे जा कर के वो सुझाव लेने बंद भी कर सकता है या सुझाव को वेलकम करता है।